میرے غوث اعظم تو ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں میں زمانے کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے انسان اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہے۔ میرے غوث اعظم کی شان کیا ہے، میرے غوث اعظم کا مقام کیا ہے، اللہ نے انہیں کیسا رب و دبدبہ عطا فرمایا ہے، کیسا مقام و کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ قربان جاؤ غوث اعظم کی عظمت پر۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے ایک ایسی کتاب عطا فرما دی ہے، صبح قیامت تک تمام آنے والے مریدوں کا نام اس کتاب کے اندر تحریر ہے۔ لیکن کبھی تم نے غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیا، کبھی ان کی سیرت کو پڑھا، کبھی غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہو کے تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کیے؟ قسم خدا کی قربان جاؤ غوث اعظم کی عظمت پہ میرے غوث اعظم کا حال یہ تھا، تقریباً 35 سال تک مدائن کے جنگلات میں اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ کو راضی کرتے رہے، اور کتابوں کے اندر آتا ہے تقریباً 15 سال تک میرے غوث اعظم ایک پیر کو زمین پہ بچھاتے، ایک پیر کھڑا کرتے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صبح صادق سے پہلے پورے اللہ کے مقدس کلام کو ختم کر دیتے۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، تم غوث اعظم کی محبت کا اظہار کرتے ہو، تم نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کی؟ جب کوئی بندہ مومن اس روئے زمین پر اولیاء کاملین کے دامن کو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کرتا ہے، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں ڈالتا ہے، تو قسم خدا کی اگرچہ انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اللہ رب العزت انہی سجدوں کی برکت سے ان کے ماقبل کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مگر سرکار نے جانے نہ دیا، اور میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ حضرات، میں نے جس آیت پاک کو اپنی تقریر کا موضوع بنایا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر اللہ رب العزت آ کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضرات، آج کی یہ بابرکت محفل ان بزرگوں کے نام سے منسلک ہے، اور میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں جناب فہیم بندو اور ان کے تمام احباب کو کہ انہوں نے اولیاء اللہ کے ان پر جو ہے شسمائی کے موقع پر اتنا عظیم الشان پروگرام کا اہتمام و انتظام کیا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضرات، علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ اس کے رسول کے ذکر میں آیا کرو تو نبی کی ذات پہ درود پڑھو۔ درود پاک پڑھنے کے فضائل و وسائل بے شمار ہیں۔ جب بندہ مومن اس روئے زمین پر اللہ کے نبی کی ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالی بندہ مومن کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کتابوں کے اندر مختلف روایات ہیں، کبھی روایات کے اندر آتا ہے کہ 10 درجات کو بلند کرتا ہے، انسان کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی میری ذات پہ درود پڑھتا ہے تو میں اس کی درود کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اور آپ نے سنا ہوگا میرے آقا مدینے کی سرزمین پر موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تمام صحابہ موجود ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پیسے والا پیسے کی بنیاد پر آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مال و دولت والا اپنی مال و دولت کی بنیاد پر آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حکومت و سلطنت والا اپنی حکومت و سلطنت کی بنیاد پر آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن یا رسول اللہ، وہ آپ کے امتی جن کے پاس نہ پیسہ ہے، جن کے نہ پاس مال و زر ہے، جن کے نہ پاس کوئی ذریعہ معاش ہے، وہ کیسے آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا؟ تو قسم خدا کی قربان جاؤ عظمت رسول اللہ پر، قربان جاؤ ذات رسول اللہ پر، قربان جاؤ شان رسول اللہ پر، میرے آقا مدینے کی سرزمین پر تمام صحابہ کے درمیان میں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، یہ بات ٹھیک ہے پیسے والا پیسے کی بنیاد پر میری قبر انور کی زیارت کر کے میری شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ اے میرے پیارے صحابہ، یہ بات ٹھیک ہے کہ دولت والا اپنی دولت کی بنیاد پر میری قبر انور کی زیارت کر کے میری شفاعت کا مستحق ہو جائے گا، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدن
वजबत लहू शफाअती, जिसने मुझ पर वापस से एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असल के आला हजरत, उर्से मुकद्दस, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। ए औलिया अल्लाह की महफिलों में आने वालों, तुम अपनी तकदीरों पे कुर्बान जाओ कि तुम्हारे मकाम कितने बुलंदों वाला है। तुम औलिया अल्लाह का जिक्र करने के लिए आए हो, लेकिन यकीन जानना तुम पीरे पीरा मीरे मीरा हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिक्र पाक को सुनने के लिए आए हो, औलिया कामलीन का जिक्र पाक सुनने के लिए आए हो। मेरे गौसे आजम तो इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों मैं जमाने को ऐसे देखता हूँ जैसे इंसान अपनी हाथ की हथेली पर राई के दाने को देखता है। मेरे गौसे आजम की शान क्या है, मेरे गौसे आजम का मकाम क्या है, अल्लाह ने उन्हें कैसा रोबो दबदबा अता फरमाया है, कैसा मकाम और कैसी शान अता फरमाई है। कुर्बान जाओ गौसे आजम की अजमत पर। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे एक ऐसी किताब अता फरमा दी है, सुबह क़यामत तक तमाम आने वाले मुरीदों का नाम उस किताब के अंदर तहरीर है। लेकिन कभी तुमने गौसे आजम की जिंदगी का मुताला किया, कभी उनकी सीरत को पढ़ा, कभी गौसे आजम की जिंदगी का मुताला करके अपने गुनाहों पर नादिम होके तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा तिल्ला किए? कसम खुदा की कुर्बान जाओ गौसे आजम की अजमत पे। मेरे गौसे आजम का हाल ये था, तकरीबन 35 साल तक मैदान के जंगलात में अल्लाह अल्लाह करते रहे, अल्लाह को राज़ी करते रहे। और किताबों के अंदर आता है तकरीबन 15 साल तक मेरे गौसे आजम एक पैर को जमीन पे बिछाते, एक पैर खड़ा करते, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सुबह सादिक से पहले पहले पूरे अल्लाह के मुकद्दस कलाम को खत्म कर देते। ऐ मेरी कौम के जिम्मेदार मुसलमानों, तुम गौसे आजम की मोहब्बत का इजहार करते हो, तुमने कभी अल्लाह की बारगाह में तौबा तिल्ला की? जब कोई बंदे मोमिन इस रुए जमीन पर और या कामिलीन के दामन को थाम के अल्लाह की बारगाह में तौबा तिल्ला करता है, अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में डालता है, तो कसम खुदा की अगर जो इंसान के गुनाह समंदर के जहाज के बराबर हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हीं सजदों की बरकत से उनके माक़बल के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। बेशक बेशक सुभान लेकिन एहसास नहीं होता है। एहसास कैसे होगा? क्योंकि रात के 12-1 बजे तक मोबाइलों के जरिए से जिंदगी को तबाह बर्बाद करने वालों, नमाजें छोड़ने वालों, हम ख्वाब देखते हैं कि मुझे अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। ये जहनों से ख्वाब निकाल दो कि जन्नत इतनी आसानी से मिल जाएगी। नमाजें हम छोड़े, ख्वाब देखें जन्नत का, कुरान की तिलावत हम ना करें, ख्वाब देखें जन्नत का, और गुनाहों पे गुनाह हम करें, ख्वाब देखें जन्नत का। हम चौराहों पर बैठ के जो है ताश के पत्ते बिखेरे, ख्वाब देखें जन्नत का। शराब के अड्डों पे जाके शराब हम पिए और ख्वाब देखें जन्नत का। अल्लाह की कसम जन्नत इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। पहले तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ, नमाजों के आदी बन जाओ, कुरान की तिलावत करो, शरीयत मुस्तफा की पासमानी करो, और या कामलीन की मोहब्बत का जाम पी जाओ, और जमाने वालों को बताओ, ए जमाने वालों, हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जिस तरीके से औलिया अल्लाह ने अपनी जिंदगी को गुजारा है, हम उनकी जिंदगी को अपने लिए नमूना बना के अल्लाह की बारगाह में तौबा तिल्ला करेंगे। अगर वाकई में तुमने ये तय कर लिया कि हम आज से नमाजों की पाबंदियां करेंगे, जैसे ही ये जानू की आवाजें तुम्हारे कानों से टकराएं, तुम सारे कारोबार को बंद करने के बाद अल्लाह की बारगाह में जाओ, और जाने के बाद अपनी पेशानी को डाल दो। अरे जितने गुनाह होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हीं नमाज की बरकत से तुम्हारे तमाम माक़बल के गुनाहों को माफ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। एहसास होना चाहिए, और मुझे जर्रा बराबर एहसास नहीं होता है। आप जानते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजदी अलैहि रहमतुर रिज़वान के खलीफा गुजरे हैं, जिनका नाम हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि हैं। दिल्ली की सरजमीन पर आपका मज़ार पुरबहार है। जिंदगी का हाल ये था कि आप दिन में रोजा रखते, रात में अल्लाह की इबादत करते, कुरान की तिलावत करते। मुझे एहसास क्यों नहीं होता? नमाजें हम छोड़े, कुरान की तिलावत हम ना करें, रात के 12-1 बजे तक मोबाइलों के जरिए से जिंदगी को तबाह बर्बाद हम करें। जर्रा बराबर एहसास ना, ख्वाब देख बैठे हम जन्नत का। जन्नत इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। ऐ मेरी माँ बहनों, इस जलसे पाक में तशरीफ लाने वाली तुम बेपर्दगी मत करो और जिंदगी को जो है बर्बाद मत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे कभी जर्रा बराबर एहसास नहीं होता है। अपने अंदर एहसास पैदा करो। जब तुम्हारे अंदर एहसास होगा, पर्दे की हालत में जिंदगी गुजारोगी, शरीयत मुस्तफा का जाम पियोगी, अल्लाह की बारगाह में तौबा तिल्ला करोगी, तो इस रुए जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें कामयाबी की ज़मानत अता फरमा देगा। इस दुनिया के अंदर भी तुम्हारी जिंदगी में बहारें पैदा हो जाएंगी, और जब तुम इस रुए जमीन से जाओगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज की बरकत से, रसूल पाक की सुन्नत को जिंदा करने की बरकत से अल्लाह तबारक तआला तुम्हें जन्नत की बशारतें अता फरमा देगा। एहसास होना चाहिए, लेकिन एहसास नहीं होता है।
एहसास कब होगा? कब अपनी जिंदगी को बदलोगे, कब अपने मुआशरे को बदलोगे, कब अल्लाह की बारगाह में तौबा तिल्ला करोगे। मैं कह रहा था हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली की सरजमीन पर हैं, आप महफिल लगी हुई है, आप फरमाते हैं मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जिसने कभी जिंदगी में बगैर वजू के आसमान की तरफ नहीं देखा है, कभी अपने गिरेबान में झांका। हम तो बेवजू की तो बात की दूर बात है, हम नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। कोई तो ऐसा है जुमे की जुमा नमाज पढ़ता है, कोई रमजान में पढ़ता है, कुरान रखा है, धूल जम जाता है, लेकिन पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आपने इतना कहा कि मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जिसने जिंदगी में कभी बगैर वजू के आसमान की तरफ नहीं देखा, महफिल में सन्नाटा छा गया। उसके बाद आपने फिर दूसरी शर्त रखी, मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जिसने जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तहज्जुद की नमाज नफल है। जब हम फर्ज नमाज नहीं पढ़ते हैं तो बताओ नफल नमाजें कैसे पढ़ेंगे? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब कोई बंदे मोमिन मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है, 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। ऐ लोगों एहसास पैदा करो। फिर आप फरमाते हैं मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जिसने जिंदगी में कभी असर की न सुन्नतों को नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। सुन्नतें ये गैर मुक़द्दा हैं असर की। अगर कोई इंसान छोड़ देता कोई मुआखज़ा नहीं होगा, लेकिन बगैर जरूरत इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान बात बात पे सुन्नतों को छोड़ता है। जैसे ही जमात खड़ी होने का वक्त होता है तब इंसान अपने घरों से निकलता है, इंसान की रगतें छूट जाती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरी कौम के जिम्मेदार मुसलमानों, बदलो अपने आप को और अल्लाह की बारगाह में तौबा तिल्ला करो। इसलिए अभी वक्त है, वरना हालात के जायजा लो और हालात के दायरे में रह के अपनी जिंदगी को बदल डालो। आपने फरमाया मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जिसने जिंदगी में कभी असर की सुन्नतों को नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरी महफिल के अंदर सन्नाटा सा छा गया। उलमा भी हैं, मुफ्तियाने किराम भी हैं, औलिया अल्लाह उस महफिल के अंदर बैठे हुए हैं। महफिल के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। उसके बाद वो अपने जमाने का बादशाह जो आपका खलीफा है खड़ा होता है, जिनका नाम हजरत अल्तमश रहमतुल्लाह ताला अलैह है, और उसका तेज सरकार मैं ही वो गुनहगार हूँ जिसकी जिंदगी में कभी ना तो असर की सुन्नतें छूटी है, ना बगैर वजू के आसमान की तरफ देखा है, ना कभी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज छोड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। आंखों में आंसू हैं। ऐ मुसलमानों, और या अल्लाह के दामन को थाम के अभी वक्त है, गनीमत समझो। तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा तिल्ला कर लो। अगर तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा तिल्ला करोगे, कितने गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाजों की बरकत से तुम्हारे माक़बल के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। वाह खुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।